السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومانچہ بائی حیات ارتضیٰ کی ایپیسوڈ سیکنڈ عادت۔ السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومانچہ بائی حیات ارتضیٰ کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کوئی بحث کی بات نہیں، سب لوگ جا رہے ہیں اور یہ آرڈر ہے، رومان شاہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور سب کو گھورتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ رومان شاہ کے ایک فون کال پر رومان شاہ کے سب یار اس کے گھر پر اکٹھے تھے۔ چائے کے ساتھ خاص لوازمات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آنے سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا رومان شاہ نے سب کو گھر پر کیوں بلوایا ہے، مگر یہاں آ کر جو جھٹکا دیا گیا تھا، سب حیران بھی تھے اور پریشان بھی، لیکن رومان شاہ کے سامنے نہ کبھی کسی کی چلی تھی اور نہ اس تک چل رہی تھی۔ سب ایک دوسرے کی شکلیں تاڑ رہے تھے، مگر یار 2 دن کی ٹرپ کے لیے اتنی بڑی تیاری؟ سوئٹزرلینڈ! شاہ زیب نے حیرت سے رومان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بس کر دو یار، اتنا منہ کھول کر سوئٹزرلینڈ مت بولو، مجھے تو اس نام سے ہی ڈر لگنے لگا ہے۔ رومان شاہ چائے کا سپ لیتے ہوئے اس کی بات کو مد نظر مذاق میں اڑاتے ہوئے نارمل بیٹھا تھا، کیونکہ رومان شاہ اچھی طرح جانتا تھا کہ آخر میں ہونا تو وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ رومان، میری بات سنو، تم ہمیں کسی چھوٹی موٹی ٹرپ کے لیے نہیں بلا رہے، کنٹری سے باہر جانا ہے، اس لیے کافی سارے انتظامات دیکھنے پڑتے ہیں۔ احمد الوی نے اپنی رائے پیش کی۔ یہ کوئی عام ٹرپ نہیں، یہ میری کامیابی کی خوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری خوشی میں میرے سب قریبی لوگ شامل ہوں، اور اگر میں یہ سوچا ہے تو سب انتظامات بھی میں خود دیکھوں گا۔ تم لوگ ساتھ چل رہے ہو مطلب چل رہے ہو، میں نے تم لوگوں کی رائے نہیں پوچھی، صرف تم لوگوں کو بتایا ہے کہ گھر جا کر اپنی بیویوں کے ساتھ ہیلپ کرواؤ اور جانے کی تیاری کرو۔ رومان شاہ نے نرمی سے مگر حتمی انداز میں کہا۔ میرب جو اپنے سب بھائیوں کے لیے چائے کے ساتھ سنیکس وغیرہ سرو کر رہی تھی، ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ جب رومان شاہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر کسی کی ایک نظر نہیں چلتی۔ سامنے بیٹھے بھائیوں پر میرب کو رحم آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ اس کے سب بیچاری سی شکلیں بنا کر بیٹھے تھے۔ یار مجھے فی الحال چھٹی نہیں ملے گی، میں صرف ضروری پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، شامل نے مجبور سے شکل بناتے ہوئے کہا۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمشنر صاحب، میرے بہت اچھے دوست ہیں اور تمہاری چھٹی منظور کروا لی جائے گی۔ شامیر نے حیرت زدہ نظر سے رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ بہت ٹیڑھی چیز ہے یار تو، شامیر نے سر ہلا کر رہ گیا، مطلب کہ اس نے انکار کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں چھوڑی تھی، صرف اس کی ہی نہیں تیری بھی چھٹی لے لی ہے۔ رومان شاہ نے ڈاکٹر شاہزیب کی جانب دیکھا۔ جانتا ہوں میری چھٹی تو تم لے سکتے ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے ہاسپٹل کے سب سے بڑے ڈونر تم ہو، تمہیں کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے، تمہیں کیسے کوئی نکال سکتا ہے؟ ڈاکٹر شاہزیب گہری سانس لیتے ہوئے سامنے پڑے اسنیکس کے ساتھ انصاف کرتے چائے کا سپ لے کر ریلیکس ہو گیا تھا۔ احمد الوی اور آسم شاہ سے پہلے ہی ریلیکس بیٹھے تھے، انہیں تو پہلے ہی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ چلو بھائی، جب باس خود اسپانسر کر رہا ہے تو پھر اعتراض کیسا؟ احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد الوی کو تو ویسے ہی کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگوں کے جانے کی بھی تیاری کر لی ہے۔ احمد، آپ کی امی جان بھی ساتھ جائیں گے اور شامیر کے مام ڈیڈ بھی۔ رومان شاہ نے اگلا حکم صادر کیا تو سب نے ایک دوسرے کی جانب غور سے دیکھا۔ مطلب صاف تھا کہ خدا پیسہ سب کو دیتا ہے مگر دل کسی کسی کو دیتا ہے۔ ایسا جگڑا جو اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ لے کر ایک بہت بڑی رقم خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، ایسے شخص کو ہی رومان شاہ کہتے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی کسی پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، اور یہاں کروڑوں کی رقم خرچ کر کے سب کو ایک ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ شکل ہی نہیں، دل سے بھی شہزادہ اور بادشاہ تھا۔ رومان شاہ کتنے احسان کرو گے، کتنا ہمیں خود پر شرمندہ کرو گے؟ ڈاکٹر شاہزیب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ شاہزیب خان، میں لعنت بھیجتا ہوں تمہاری شرمندگی پر اور تمہاری سوچ پر۔ رومان شاہ غصے سے بولا۔ تمہارے دماغ میں اتنی گندی سوچ کہاں سے آئی ہے؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم لوگوں پر احسان کر رہا ہوں؟ کب سے ہماری دوستی کے بیچ میں شرمندگی جیسے الفاظ آنے لگے؟ سوری یار، میرا مطلب تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔ سچ میں یار، تو ہمارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، بس اسی لیے بول دیا۔ شاہزیب رومان شاہ کو اتنے غصے میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ چھڑ یار، یارا دے وچ جد احسان نے شرمندگی ورگے لفظ آ جاون تے ادو دوستی دی بنیاد آپ پہ ہل جان دیے۔ چھوڑ یار، یاروں کے بیچ میں احسان اور شرمندگی کے جیسے الفاظ آ جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ دوستی کی بنیاد ہل گئی ہے۔ سوری یار، ہمیں تیری نیک نیتی اور تیری دوستی پر کوئی شک نہیں ہے، تو ایسے ناراض نہیں ہو سکتا۔ ہماری کیا جرات ہے کہ ہم ساتھ نہ چلیں؟ رومان شاہ کا دل دکھا تھا اور اس کا لہجہ بہت سخت اور غصیلا ہو گیا تھا۔ شاہزیب جلدی سے آگے بڑھ کر رومان شاہ کے بازو سے کھینچتے ہوئے سے گلے لگا گیا تھا۔ چھوڑ دے شاہزیب، تو نے اتنی گھٹیا بات کی ہے، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم لوگوں پر احسان کرتا ہوں؟ یار اب کیا کان پکڑوں؟ بھابھی جان پلیز تھوڑی سی ہماری سفارش کر دے، غلطی ہو گئی آپ کے بھائی سے۔ شاہزیب نے میرب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پلیز آپ چھوڑ دے اس بات کو شاہزیب بھائی، کا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرب بس اتنا ہی کہہ پائی تھی کیونکہ دوستوں کے بیچ بولنا اسے نہیں اچھا لگتا تھا اور نہ ہی رومان شاہ کو پسند تھا۔ شاہزیب بھائی کا مطلب جو بھی تھا، مگر تمہارے شاہزیب بھائی نے میرا دل ضرور دکھایا ہے۔
सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। शाहजेब ने कान पकड़ लिया। रोमान शाह ने इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। जान हो तुम लोग मेरी, इसलिए तुम लोगों को छोड़कर कहीं जाने का मेरा दिल नहीं चाहता। क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूँ। चाहता हूँ जहां भी जाऊं तुम लोग मेरे साथ हो। यार क्या पता अल्लाह ताला किसके नसीब में ये सब रहमतें और बरकतें दे रहा है। सब ने उसको रोमान शाह के इर्द गिर्द घेरा बना लिया। सब जानते थे कि रोमान शाह छोटी छोटी बात पर खफा नहीं होता, मगर इस वक्त इसका दिल बहुत ज्यादा दुखा था। चलो यार, अब माहौल को थोड़ा लाइव करो। सेंट मॉरिटस, वहां की बर्फबारी, स्केटिंग और लग्जरी रेजर्वर्स, भाई ये तो ख्वाबों की जैसी जगह है। मगर यार बच्चों की भी तैयारी करवानी होगी, इनके वीजा वगैरह भी न्यू करवाने होंगे। और कुछ भी तो और कुछ के तो अभी बनवाने ही वाले हैं। आसिम शाह ने थोड़ा परेशानी से कहा, बच्चों की फिक्र मत करो, सब कुछ मैंने अरेंज कर लिया है। रोमान शाह ने तमाम भरे लहजे में कहा था, यार तुमने ये सब कैसे किया, मतलब बच्चों के वीजे वगैरह कैसे तैयार करवाए? इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास हैं। आसिम ने हैरानी से अपने बड़े भाई की तरफ देखा। रोमान शाह ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भाभियां, मेरी बहनें मेरे साथ थी, तो वो सारे कागजात तुम लोगों के घर से निकलवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ओ माय गॉड, हम मतलब हमारी बीवियां अपने भाई साहब के साथ मिली हुई थी और वो 2 दिन से शॉपिंग के चक्कर लग रहे हैं। इसका मतलब था कि जाने की तैयारी हो रही थी। अहमद अलवी ने हैरत से सबको देखते हुए कहा, पिछले 2 दिन से जब सबके घरों में धड़ाधड़ शॉपिंग चल रही थी, मर्द हजरात हैरान तो थे, मगर ये मालूम नहीं था कि असल में किस चीज की तैयारी हो रही है। चोरी छुपे सारी तैयारियां मुकम्मल थी। जी बिल्कुल, मेरी सब बहनें जानती थी कि हम लोग 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। और हाँ, वहां जाकर 4 बल्कि 6 दिन भी लग सकते हैं, इसलिए इतना मुंह मत खोलो, मक्खियां घुस जाएंगी। और मेहरबानी करके अपने घर जाओ और जाकर अपनी तैयारी करो। अगर कोई भी लेट हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। 2 दिन का वक्त है तुम लोगों के पास, कल नहीं परसों हमें हर सूरत निकलना है। सब बेचारे चाय और स्नैक्स खाकर फौरी तैयारी के लिए निकल चुके थे, क्योंकि एक खूबसूरत ट्रिप की सारी प्लानिंग रोमान शाह पहले ही मुकम्मल कर चुका था। 2 दिन बाद जहाज की खिड़की से बाहर नजर आती बर्फ की ढलती वादियां और पहाड़ सबको महसूस कर रहे थे। जैसे ही इनका प्राइवेट जेट सेंट मॉरिटस के एयरपोर्ट पर उतरा, बर्फ की चमकती सफेद चादर ने सबको जादू या सांस में मगन में होकर मसरूर कर रहे थे। वाह, ये जगह तो ख्वाबों से भी ज्यादा हसीन है। मीरा अपनी खुशी से साथ बैठे रोमान शाह का हाथ थामते हुए कहा, हाय, और ये मंजर भी ख्वाबों से कहीं ज्यादा हसीन है। रोमान शाह ने चुपकर उसके कान में सरगोशी की तो मीरा अपने रोमान शाह के गाल पर हाथ रखते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। और लोग भी मौजूद है, रूम में चलकर रोमांटिक होइएगा, यहाँ पर इजाजत नहीं है। वो आहिस्ता से सरगोशी में बोली, मेरा दिल चाहेगा मैं रोमांटिक भी हो जाऊंगा और जो कहना चाहूंगा वो भी कहूंगा। यहाँ मैं अपने जज्बातों पर पहरे लगाने नहीं आया, और मुझे मत सिखाओ जानिशा कि मुझे क्या करना है। रोमान शाह ने सख्ती से जुमले कहते हुए इसकी कमर के नीचे से हाथ ले जाकर अपने साथ चिपका लिया। मीरब ने खामोश रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि रोमान शाह का मूड अलग ही लेवल पर जा चुका था। सफर हंसते खेलते गुजर चुका था और वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। रोमान शाह ने एक प्राइवेट लग्जरी चिलिट बुक कर रखा था, जहां सबको अलग अलग रूम्स दिए गए थे। चिलिट के सामने बर्फ ढकी हुई बर्फ ढकी झील थी और वो दूर पहाड़ों पर स्केटिंग करने वाले नजर आ रहे थे। अब आज सब लोग आराम करें और शाम को रेस्टोरेंट में स्पेशल डिनर होगा, जहां मजेदार स्विस खाने और हमारा इंतजार कर रहे हैं। रोमान शाह ने ऐलान किया। सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। माहौल का असर, फिजाओं में सुकून ही सुकून था। चंद घंटों के आराम के बाद शाम होते ही सब लोग अपने लग्जरी कपड़ों में तैयार होकर एक खूबसूरत शीशे की दीवारों वाले रेस्टोरेंट में पहुंचे। बाहर बर्फबारी हो रही थी, अंदर मध्यम रोशनी, हल्की मौसीकी और महंगे खाने थे। रुमान शाह ने सबको शैंपेन ग्लासेस की जगह गर्म कॉफी के कप थमाते हुए कहा, ये सिर्फ बिजनेस की जीत की खुशी नहीं, बल्कि इस बात का जश्न है कि हम सब साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। सबने इंशाल्लाह कहा। बेशक दोस्तों और फैमिली के बगैर कामयाबी का मजा नहीं आता। हम हमेशा ही एक दूसरे की खुशियों में इसी तरह से शरीक हैं। शाहमीर ने फौरन कहा। सबने जीत के जश्न में एक दूसरे से कप टकराते हुए चीयर्स किया। वैसे यार, यहाँ शराब के ग्लास होने चाहिए थे, फिर मजा आता। डॉक्टर शाहजेब जहाँ मौजूद, वहां पर रोमान शाह की सोच से हटकर जुगतबाजी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये शोशा डॉक्टर शाहजेब ने छोड़ा था। महफिल में एकदम खामोशी छा गई। शाहमीर ने घूरते हुए शाहजेब की जानिब देखा। थोड़ी शर्म कर ले, फैमिली के साथ आया है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। जब मुंह खोलता है कभी नहीं सोचता कि बोलना भी चाहिए या नहीं। शाहजेब दबी दबी आवाज में से डांट रहा था। साथ वाले टेबल पर खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग बैठे थे, जिनमें अहमद के वालिद, शाहमीर के माँ बाप और दीगर खवातीन शामिल थी। रोमांचा का ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं पसंद था। यार मैंने तो बस वैसे ही कहा था, रुकी सुखी सर्विस देने का क्या फायदा। अगर मुल्क से बाहर ट्रिप पर आए हैं तो इतने रोमांटिक माहौल और इतने रोमांटिक मुल्क में आए हैं तो कुछ तो रंगीन होना चाहिए।
शाहजेब ने दांत निकालते हुए कहा, अस्तगफिरुल्लाह, बड़ा ही बेशरम है शाहजेब, तुझ पर किसी चीज का असर नहीं होता, मुंह बंद रखा कर वरना उठाकर यहाँ की पहाड़ियों से नीचे फेंक दूंगा। रुमान शाह ने सख्ती से कहा तो सबका एक साथ कहका लगाकर हंस पड़े। खवातीन और बच्चों ने सबको इतना जोर से हंसते देखकर अचानक इनकी तरफ देखा, मगर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि वो किस बात पर हंस रहे हैं। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में बर्फबारी से ढके हुए पहाड़ और शाम का मंजर बेहद खूबसूरत और देखने लायक होता है। सर्दियों की ठंडी शाम हवाओं में हल्की खनकी और आसमान से गिरती बर्फ नरम बर्फ के गाले जैसे फिजा में खुशी किसी ख्वाब का रंग बिखरा हुआ हो। खाने के बाद सब बाहर निकले तो बर्फ ने एक नई रौनक भर दी थी। सफेद चमकती वादियों में हर चीज जादुई लग रही थी। खाना खाकर बाहर निकलते ही निकलते सबने एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाने शुरू कर दिए। आह! मीरब ने हंसते हुए एक बर्फ का गोला रोमांचा की तरफ उछाला जो सीधा उसके कंधे पर लगा। अचानक लगने से बेख्तियार रोमांचा के मुंह से आह की आवाज निकली थी। रोमांचा ने हैरानी से इसे देखा, फिर मुस्कुराकर एक बड़ा सा गोला बनाया। अब बचकर दिखाओ। एक झटके से इसकी तरफ बढ़ा तो मीरब चीख मारकर पीछे हटी, मगर तब तक रोमांचा बर्फ का गोला इसके करीब ले जा चुका था। वो कबूतर की तरह आंखें बंद करके थी। ये नाइंसाफी है। रोमांचा की आवाज पर मीरब ने आंखें खोलकर देखा। रोमांचा ने वो बर्फ का गोला वापस फेंक दिया। अपनी बारी डर अपनी बारी डरकर आंखें बंद कर ली, जबकि मेरे ऊपर अचानक से बर्फ का गोला फेंक दिया। रोमांचा ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ को नरमी से थाम लिया। इरादा तो बहुत कुछ करने का था, मगर पास बाकी सब लोग मौजूद थे तो सिर्फ इतने पर ही सब्र करना पड़ रहा था। मोहब्बत में सब जायज है। मीरब ने शरारत से आंख दबाई। मीरब के अंदाज पर रोमांचा हैरान रह गया था। ओहो, ठीक है, जब मोहब्बत में सब जायज है तो फिर हम भी खुद से जायज हकूक यहाँ से पूरे किए बगैर नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। रोमांचा चेहरा इसके करीब ले जाते हुए हल्का सा झुककर धमकी देते हुए मीरब की धड़कनों की तार छेड़ चुका था। मीरब की धड़कनें धड़कते हुए बाहर आने को बेताब थी। एक तो वहां का रोमांटिक मौसम, ऊपर से रोमांचा की रोमांटिक बातें। रोमांचा के हाथ की हरारत को हाथ पर महसूस करना, ये सब कुछ मीरब के गालों को टमाटर की तरह लाल कर रहा था। जोरदार कहकों की आवाज पर मीरब ने चौंक कर पीछे की जानिब देखा। शामिर, अहमद और डॉक्टर शाहजेब को तो पूरे एक्शन में थे। शाहजेब ने अहमद को निशाने पर रखा, जबकि शामिर ने खुद को बचाने के लिए अहम मौके पर झुककर डॉक्टर शाहजेब को निशाना बनवा दिया था। यार, तुम लोगों को लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ? शाहजेब ने नाक सुकेड़कर अपना चश्मा ऊपर करते हुए कहा। भाई, बूढ़े नहीं हुए हैं, बस बर्फ के बोझ तले दब चुके हो। अहमद ने गिरे हुए शाहजेब को देखकर जोरदार कहका लगाया। चंद लम्हे मजीद यही बर्फबारी चलती रही, मगर फिर सबको शिद्दत से ठंड महसूस होने लगी। इनमें से कोई भी स्विट्जरलैंड की बर्फ का आदी नहीं था। बुजुर्ग तो पहले ही होटल से जा चुके थे। शाम के वक्त बाहर रहना इनके लिए मुमकिन नहीं था। बच्चों और बुजुर्गों को आरामदायक कमरों में पहुंचा दिया गया था, जहां पहले ही इनके लिए स्पेशल रूम्स बुक किए गए थे। जकिया सब बच्चों को संभाले हुए थी और बुजुर्ग खवातीन ने जोड़ों को खुलकर जीने का मौका दिया था। जकिया का साथ देते हुए बच्चों को संभालने में बुजुर्ग खवातीन पूरी तरह से मददगार साबित हो रही थी। ये एक ऐसा सफर था जहाँ कोई लम्हा भर को पूरे तरीके से जी रहा हो। कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक हसीन याद जो हमेशा के लिए दिल में महफूज हो जाने वाली थी। बहुत ठंड हो रही है यार, आज हम वैसे भी थके हुए हैं, सुबह से घूमने के लिए निकलेंगे, फिलहाल रूम में चलें। आसिम शिफा का हाथ थामे हुए सबसे पहले गाड़ी की जाने बढ़ गया था। बाकी भी सब अपनी गाड़ियों में जाकर बैठ चुके थे। अंधेरी रात सफेद बर्फ में ढके हुए रास्ते और पहाड़ों के दरमियान सफर करते वो सब आगे निकल चुके थे, मगर रोमांच और मीरब की गाड़ी सबसे पीछे थी। इर्द-गिर्द का माहौल पुरस्कार सा हो गया था। बर्फ के ऊपर दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे और मध्यम रोशनी में घना जंगल किसी ख्वाब की माने लग रहा था। अचानक खौफनाक आवाज फिजा में गूंजी। एक भेड़िए की गहरी सर्द चीख। मीरब का रंग फक हो गया। खौफ की एक लहर तेज लहर ने इसके वजूद को जकड़ लिया और वो घबराकर रोमांचा के गले में बाजू डालकर चीखी पड़ी। इसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। सांसें बेतरतीब होने लगी। रोमांचा ने फौरन मजबूती से इसे अपनी बाहों में भींच लिया। इसकी नाजुक कमर पर गिरफ्त सख्त कर दी, जैसे अपने लम से इसे यकीन दिला रहा हो कि वो मुकम्मल महफूज है। कुछ नहीं है मेरी जान, कुछ नहीं। वो बहुत दूर है और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए मेरी जान क्यों डर रही हो? रोमांचा ने सरगोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे इसके लफ्जों में कोई जादू हो और मीरब के खौफ को मिटा देगा। मगर मेरे चेहरे का अब भी रोमांचा के गर्दन में चेहरा छुपाए हुए वो इससे भीगी पलकें रोमांचा की गर्दन को छू रही थी। रोमांचा ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया, इसकी आंखों से बहते आंसुओं को अपने अंगूठे से जज्ब किया और मोहब्बत भरी सरजनिश की। जानिशा, तुम रोमांचा की बीवी हो यार, क्या हो गया है? जिगरा तगड़ा रखो और देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर भी डर रही हो? मैं शौक से बोला, मगर लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। अगर वो गाड़ी के नजदीक आ गए, अगर हम पर हमला कर दिया तो? शाह, आप नहीं जानते भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं। मीरब की आवाज लरज रही थी। इसके
हाथ अब भी रोमांचा की कीमती कमीज को सख्ती से पकड़े हुए थे। रोमांचा ने नरमी से मुस्कुराते हुए इसकी थोड़ी को ऊपर किया, इसकी पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा दिया और पुरसकून लहजे में बोला, मेरा बच्चा, हाँ भेड़िया खतरनाक होते हैं मगर हम इनके इलाके से दूर हैं। वो सिर्फ आवाजें दे रहे हैं, हम इनकी जमीन में नहीं आए। गाइड हमारे साथ है, रास्ता क्लियर है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा शाह तुम्हारे साथ है। रोमांचा के लहजे में की मजबूती ने मीरा के दिल को थोड़ा पुरसकून किया, मगर इसकी गिरफ्त अब भी ढीली न हुई थी। बस थोड़ा और इंतजार, होटल आने वाला है। और हाँ, वहां जाकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। वहां जाकर मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे इस डर के ड्रामे से अपनी रोमांटिक नाइट खराब करूंगा। वो आहिस्ता से सरगोशी में बोला। ड्राइवर और गाइड लाइट से म्यूजिक में अपनी धुन में सामने देखकर गाड़ी चला रहे थे। रोमांचा ने शरारत से सरगोशी की तो मीरत ने गहरे सांस लेकर इसे सीने में मुक्का मारा। आप बहुत बुरे हैं, वो सरगोशी में बोली, मगर इसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। और तुम बहुत प्यारी हो। फरमान शाह ने इसके बालों को बोसा देते हुए ड्राइवर को हुक्म दिया और गाड़ी को तेज किया जाए ताकि जल्दी से होटल पहुंच सके। रात अब भी पुरुष रात थी, मगर रोमांचा की मौजूदगी में मीरत के लिए ये खौफनाक रात भी किसी हसीन ख्वाब के मानंद लगने लगी थी। मीरत बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह रोमांचा की बाहों के हिसार में चुपकर बैठी थी। उसका चेहरा रोमांचा की जानिब था, ताकि एक खिड़की से बाहर का मंजर नजर न आए। पहले बाहर फैले अंधेरे और भेड़िए की खौफनाक आवाज ने इसके आवाज गार्ड इसके दिल में कहीं ना कहीं मौजूद था। मगर रोमांचा की बाहों की पनाह में वो खुद को महसूस कर रही थी। रोमांचा की नजरें इसके चेहरे पर जमी थी, जैसे उसकी हर धड़कन को पड़ रही हो। मीरब ने अपना चेहरा रोमांचा के कंधे और गर्दन के बीच में छुपा लिया था। इसकी सांसों की गर्मी रोमांचा की जिद पर महसूस हो रही थी। रोमांचा की धड़कनें जैसे ही एक लम्हे को तेज हो गई थी, मगर इसने मजबूती से मीरब को खुद के करीब कर लिया था। डरो नहीं मेरी चांद, मैं हूं ना, सरगोशी में बोला। इसके लहजे में नरमी और मोहब्बत खुली हुई थी। मीरब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस और करीब सिमट गई, जैसे रोमांचा के वजूद में खुद को छुपा लेना चाहती हो। रोमांचा ने एक लम्हे को आंखें बंद की और इसके लम्स का एहसास कह रहा था। वो जानता था कि मीरब ये खामोशी कि इसका सबसे बड़ा इतराफ है। वो खुद को इसके साथ मुकम्मल महफूज समझती है। सब लोग होटल पहुंच चुके थे और कुछ देर वहीं होटल की लॉबी में बैठे हुए थे। लॉबी में गर्म हीटर लगे हुए थे। बाहर का मंजर बहुत हसीन लग रहा था। बर्फ से ढके शीशों के पार सुनसान रास्ते दिखाई दे रहे थे। अंदर लॉबी में मध्यम रोशनी और गर्म माहौल था। सब सफर की थकन उतार रहे थे जब डॉक्टर शाहजेब ने एक बड़े ट्रे में मखसूस रिवायती मशरूब के छोटे शीशे के गिलास रखे और सबके सामने ले आया। डॉक्टर शाहजेब मुस्कुराते हुए, हजरात, ये है यहाँ का खास मशरूब जो सर्दियों में ना सिर्फ जिस्म को गर्म रखता है बल्कि कुव्वत मदाफत भी बढ़ाता है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि किस कदर फायदेमंद है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। मशरूब का रंग अजीब सा था और खुशबू भी कुछ अनोखी थी। यार, इसकी खुशबू जरा थोड़ी ज्यादा रिवायती लग रही है, अहमद नाक से गिरते हुए कहा। कहीं तुमने कोई नया तजुर्बा तो नहीं कर दिया डॉक्टर साहब? शामी ने शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। शामिर पुलिस वाला हूँ, कर भी डॉक्टर शाहजेब के चकमे में आ गया था, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ भी कर सकता है। ऊपर से इसने इतने अच्छे अंदाज में सबको मुतमईन किया कि दूर दूर तक इस पर कोई शक नहीं कर सकता था। शामिर की बात पर डॉक्टर शाहजेब बेसाख्ता हंसी छुपाते हुए अपने अंदर की शरारत को दबा रहा था। भाई बस जायका थोड़ा मुनफरिद है, मगर यहाँ के लोग बरसों से पी रहे हैं। ये हम मेहमानों के लिए होटल मैनेजमेंट की तरफ से भिजवाया गया है। इनकार मत करना। बड़े अच्छे अंदाज से वो सबको मुतमईन कर चुका था। फावतन की नाक बंद करे वो मशरूब पी रही थी। अरशद दोस्तों को भी वो कायल कर चुका था। मैं फिलहाल नहीं पी रहा, रूम में जाकर पीऊं देखूंगा। रुमान शाह ने संजीदगी से ग्लास को देखते हुए कहा। डॉक्टर शाहजेब बज़ाहिर बेपरवाही से मगर अंदर से शरारत छुपाए मगर रुमान शाह पर डाले, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर बाकी सब अभी पिए। डॉक्टर साहब ने सबको जबरदस्ती पकड़ाया और फिर एक साथ गिलास चढ़ाने का ऐलान किया। मर्द हजरात ने मुश्किल से घूंट भरे। मशरूब का जायका काफी कड़वा था, मगर चूंकि पहले ही बताया जा चुका था कि रिवायती है, किसी को शक न हुआ। खवातीन तो इससे भी ज्यादा बुरी शक्लें बनाकर पी रही थी। अहमद चेहरा बिगाड़ते हुए, यार ये तो किसी रिवायती जड़ी बूटी जैसा लग रहा है। बहुत ही घटिया रिवायत है यहाँ के। लानत भेजो ऐसे मशरूब पर, मुंह का जायका ही खराब कर दिया। जड़ी बूटी नहीं, लगता है कि खराब सड़े हुए सब फ्रूट्स एक साथ जगह इकट्ठे कर दिए हैं और इनका जूस निकालकर रिवायत के नाम पर आए हुए सियाहों को पिला देते हैं, घटिया लोग। छोटा सा गिलास अपने अंदर उंडेलते हुए शामी ने बेजारी से शक्ल बनाकर कहा। सबकी ने हंसी मजाक में बात टाल दी और फिर अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। होटल की खामोशी में अचानक मुख्तलिफ कमरों में अजीब आवाजें आने लगी। कहीं कोई जोर जोर से हंस रहा था, कहीं कोई चीख रहा था और कहीं कोई गाने लगाकर। सबके कमरों में माहौल अजीब वो गरीब हो चुके थे। शिफा मेरी जान, आराम से एक जगह बैठ जाओ, तुम गिर जाओगी, आसिम ने घबरा कर कहा। मगर शिफा जोश में आई हुई थी। सोफे पर चढ़कर वो किसी बच्चे की तरह गोल गोल घूमने की कोशिश कर रही थी और आसिम बेचारा कभी दाएं कभी बाएं इसे पकड़ने की कोशिश में हलकान हो रहा था।
आसिम देखे ना मैं कितनी जबरदस्त डांसर हूँ, शिफा ने मजे से कहा और एक बार फिर से अपना तवाज़ुन खो दिया। आसिम ने जल्दी से उसे बाहों में उठा लिया, इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती बड़ी गिर जाती बड़ी डांसर साहिबा, डांसर नहीं तुम अभी मरीजा बनने वाली हो। आसिम ने जल्दी से उसे संभाला मगर इसकी हालत देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? मुझे उड़ना है। शिफा ने ड्रामाई अंदाज में हाथ फैलाए, वो बेहद मस्ती में थी और आसिम बेचारा इसे पकड़ने के लिए बार बार आगे बढ़ रहा था मगर वो हर बार शरारत से हंसती हुई इसकी गिरफ्त से निकल जाती। प्लीज मेरी जान, तुम रहने दो, उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आसिम ने नरमी से कहते हुए इसे थामने की कोशिश की मगर वो मुसलसल उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी जैसे कोई आजाद परिंदा हो जिसे किसी कैद का खौफ न हो। आसिम को भी हल्का नशा महसूस हो रहा था मगर शिफा पर यह असर कुछ ज्यादा ही था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई इसने अपना कोट उतारकर एक जानिब उछाल दिया, फिर अपनी लंबी शर्ट के बटन खोलते हुए उस शर्ट को हवा में लहराकर दूर फेंक दिया। वो बेख्तियार हंस रही थी जैसे किसी दुनियावी कैद से आजाद हो गई हो। आसिम हंसी से लोटपोट हो रहा था जबकि शिफा ने इसे बच्चों की तरह धकेल कर बेड पर गिरा दिया और खुद इसके पेट पर बैठकर जोर जोर से गुदगुदी करने लगी। हाँ, छोड़ दो मुझे, बहुत शरारती हो गई हो आज। आसिम बेसाख्ता कहका लगाकर बोला जबकि शिफा ने शरारत से अपने खुले बाल इसके चेहरे पर बिखेर दिए थे। आसिम इसके अंदाज और चमकती आंखों को देखकर बेखुद सा हो रहा था। वो नरमी से इसके करीब खींच लाया मगर वो फिर से बच्चों की तरह हंसने लगी। जब फिर वो ज्यादा शोर मचाती आसिम नरमी से इसके लबों पर हाथ रख देता ताकि होटल की इंतजामिया परेशान न हो। रात के पुरसकून लम्हे में शरारत और मोहब्बत की एक हसीन चाशनी खुल चुकी थी। आसिम की आंखों में नरमी थी और शिफा अपनी शौकी में खोई हुई थी और हर लम्हा इसे मजीद अपने सहर में जकड़ रही थी और आसिम इसके अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा रहा था। वो लम्हात की बेहद खास थे, जैसे वक्त ठहर गया हो, जैसे मोहब्बत ने हर शय को अपने आगोश में ले लिया हो। नींद बहकी हुई रात में वो कब नींद के आगोश में चले गए थे पता ही नहीं चला। माही प्लीज आराम से बैठो, अभी गिर जाओगी, अहमद ने घबरा कर कहा मगर माही के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। वो बेड पर खड़ी होकर छलांगे लगा रही थी जैसे कोई बच्चा पहली बार ट्रैम्पोलिन पर चढ़ा हो। अहमद बेचारे की नजरें इसके मुसलसल हिलते वजूद पर जमी थी जो किसी भी लम्हे तवाज़ुन खो सकती थी। अहमद देखो मैं सुपर वुमन हूँ, माही ने ड्रामाई अंदाज में दोनों बाजू फैलाकर ऐलान किया और अगले ही लम्हे खुद को तवाज़ुन से महरूम पाया। ओ शिट! अहमद ने फौरन आगे बढ़कर इसे थाम लिया मगर इसके अपने कदम पे लड़खड़ आ गए और दोनों सीधा बेड पर जा गिरे। माही हंसी से लोटपोट हो रही थी जबकि अहमद ने गहरी सांस लेते हुए इसे देखा था। मैडम आपको कभी ये कुछ संजीदगी से लेना भी आता है? सोचना पड़ेगा, माही ने चमकती आंखों से जवाब दिया और अगले ही लम्हे से शरारत से अहमद को धक्का दिया। वो पीछे गिरा तो माही मौके की फायदा उठाते हुए बेड पर बैठ गई। अब बोलो कौन जीता? इसने फातिहाना अंदाज में पूछा। अहमद ने हंसते हुए एक हाथ इसकी कमर के गिर्द लपेटा और दूसरा इसके चेहरे के करीब लाकर बोला, अभी तुम अभी तक तो तुम जीती हो लेकिन जीत हमेशा आखिरी वार करने वाले की होती है। अच्छा तो करो आखिरी वार, माही ने चैलेंज देने वाले अंदाज में कहा। अहमद ने एक लम्हे के लिए इसे देखते हुए सरगोशी की, तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? और अगले ही लम्हे इसने माही को पलटकर बेड पर दबोच लिया। माही ने कहका लगाकर खुशी से आंखें मूंद ली और बच्चों की तरह खुश होकर बोली, मैं जीती। वो बेखुद होकर बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी और अहमद जो हल्के से नशे में बहका हुआ था माही पर मुकम्मल छाया हुआ था। इसके लबों पर झुककर इसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाने लगा जबकि माही झटपटाकर हंसना चाहती थी मगर इसकी हंसी अहमद की गिरफ्त में दम तोड़ गई थी और अहमद में मोहब्बत की महलक फैलने लगी थी। स्विट्जरलैंड की फिजाओं में मोहब्बत की धुनें बिखरी हुई थी और आहों का शोर था। मिरहा बेखुदी के आरंभ में आईने के सामने खड़ी अपने बाल चेहरे पर बखेरे किसी और ही दुनिया में गुम थी। शामिर जैसे ही वॉशरूम से निकला इसे इस हालत में देखकर हैरान रह गया। वो मुतजस्सिस नजरों से मिरहा को देखने लगा जो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? शामी ने करीब आकर पूछा। मिरहा ने बालों को पीछे किया, शरारती मुस्कुराहट के साथ इसका हाथ थाम लिया। आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आए हम प्यार करते हैं, वो शौकी से बोली। शामिर को बेड पर धकेल दिया। शामिर हंसा भी और हैरान भी हुआ। इसने पहली बार मिरहा को इतने आजाद अंदाज में देखा था। मिरहा तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिरहा खिलखिलाकर हंसी भी शरारत से हाथों को टेढ़ा मेढ़ा करते हुए धड़ाम से शामिर के ऊपर गिरे। उफ! मिरहा शामिर की पसलियां तक हिल गई थी लेकिन वो इस वक्त तक अपनी हंसी रोक नहीं पाया। इसे सारी बात समझ आ चुकी थी। शासिर ने जो कुछ मशरूब पिलाया था इसका असर दोनों पर वाक़ था। शामी ने गुस्से और बेबसी से सर झटका मगर मिरहा की इस हालत पर हंसी रोकना मुश्किल भी हो रहा था। मिरहा ने इसकी गिर्द बाहें डालकर इसे करीब कर लिया। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा, इसकी आंखों में झांकते हुए बोले। शामी ने इसके रुखसार थपथपाए। मिरहा तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे बस आपके करीब रहना है, मिरहा ने शरारती अंदाज में कहा। फिर एक बार फिर से शामिर पर झुक गई। शामी ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, शाहजेब को मैं नहीं छोड़ूंगा। मगर इस वक्त मिरहा को संभालना ज्यादा जरूरी था। वो जो अपनी ही दुनिया में मगन बस मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी। मिरहा बेखुदी में शामिर के चेहरे पर बेतहाशा बू से सब कर रही थी जैसे इसकी मोहब्बत की मेहर लगा रही है। आप मुझसे प्यार करते हैं ना? वो बेताबी से बोली जैसे किसी भी कीमत पर इसका एतराफ
सुनना चाहती हो? शामीर ने इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर थोड़ा पीछे किया। इसकी मदहोश आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोला, जी बहुत प्यार करता हूँ, मगर प्यार जताने के लिए तुम्हारा होश में होना जरूरी है। ऐसी मदहोश बीवी के साथ मुझे मोहब्बत जताने का कोई शौक नहीं है। सुबह होश में आना, फिर बताऊंगा कि कितना प्यार करता हूँ। नहीं, आप अभी बताएं। मिठा ने जिद की इसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया, जैसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह अपनी ख्वाहिश मनवाना चाह रही हो। शामीर ने एक गहरा सांस लिया। स्विट्जरलैंड की बर्फबारी में घर घर और घर घिरा वो खूबसूरत होटल, अंदर हीटर की नरम गरम, और इसकी बाहों में मदहोश पड़ी इसकी अपनी बीवी। ऐसे में वो कैसे खुद पर काबू रखता? एसपी साहब को अपने जज्बात पर काबू पाने के लिए आहनी हौसला चाहिए था, मगर यहाँ मोहब्बत का दरिया और इसकी रवानी बहती जा रही थी। लम्हा लम्हा इसकी शिद्दत मोहब्बत में डूबते चले जा रहे थे। शामिर के जज्बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज किए मोहतरमा को खूब पपियां चपियां करने के बाद शामिर की गर्दन में चेहरा छुपाकर आराम से कराटे लेने लगी, जैसे दुनिया में कोई गम ही ना हो। शामिर बेबसी से आसमान की तरफ देखकर रह गया, अपने अरमानों पर आंसू बहाते हुए। दिल ही दिल में डॉक्टर शाहजेब को खूब पूछने लगा, कमाल किया तूने डॉक्टर, मेरी स्विट्जरलैंड की पहली रात ही बर्बाद कर दी। मगर अब कुछ भी नहीं कर सकता, ना अपनी जान को झंझोड़ सकता, ना खुद को समझा सकता। बेचारा शामिर जो मोहब्बत के दरिया में बहने ही वाला था, अब जब्त के किनारे पर खड़ा था। हीटर की गर्मी, बाहर बर्फबारी और अंदर जज्बातों का तूफान, मगर मोहतरमा नींद में खराटे ले रही थी, जैसे कि ये सब इन्हीं के मंसूबे का हिस्सा हो। शाहमी ने बेबसी से तकिए में मुंह दे मारा और खुद को संभालते हुए राहें सीधी करने लगा। इसके पास वो और कोई चारा नहीं था। मोहतरमा नींद के मजे ले रही थी और अब वो अपनी रात में बर्बाद होने का मातम मना रहा था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।